ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ offensive ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੈਡ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਲਈ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है मैम ਤੁਹਾਡਾ। नेग्लिजेंसी तो है, जो पोल की तरफ किसी ने ध्यान दिया होता, ना पोल टूटता, ना खिलाड़ी की मौत होती। बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो आप भी कहेंगे, डेफिनेटली है। इसमें सियासत कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम गए वहां पर, परिवार से मुलाकात की, दुख के समय में उनके साथ बातचीत की और सीधी तौर पर कहा कि ये तो नेग्लिजेंस है, देखिए ह्यूमन एरर है, अगर ये ध्यान दिया जाता प्रशासन की ओर से तो ये बच्चा आज हमारे बीच होता। तो इसमें सियासत कैसे हो गई? गौरव जी, आपको नमस्कार और पैनल में बैठे हुए मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले अपना घर संभालो। अगर हम अपना घर नहीं संभाले, चाइल्ड बिगिंस एट होम, अंग्रेजी कहावत है। तो अगर आप अपना घर संभाल पा रहे हैं और दूसरों को में जाकर ज्ञान दे रहे हैं,
तो फिर ये अतिशयोक्ति लगती है। आप लगता है कि आप जो टेरर दी गई है उस आप बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस समय जो पंजाब में सरकार है भगवान जी की, जो कि आम आदमी पार्टी आते हैं, अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे आम आदमी पार्टी का, तो इन्होंने इसी किसी नेगेटिव राजनीति पॉलिटिक्स की। दिल्ली में भी यही कारण है इनका सफाया हो गया, क्योंकि जब दिल्ली में ये राजनीति करते थे, खुद ही मंत्री, आतिशी जी खुद ही मंत्री थी, आप मुख्यमंत्री प्रदेश की, अगर आपके यहाँ पानी फ्लड की कोई दिक्कत है तो आप थोड़ी धरने बैठ जाएंगी भाई, उसका सोल्यूशन डालेंगे ना, आप धरने में भी बैठेंगी। तो इनकी जो राजनीति, वो नेगेटिव राजनीति, चुनावों में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने। सर जब आप बोल रहे थे तो मेरी आदत है कि मैं किसी के बोलने पर टोकती नहीं हूं, तो कृपया करके मैं आपसे आशा करूंगी कि ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। अपनी थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, वो मेरी टीम देख लेगी, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी। और मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं जब आप तो यहीं से हो गई थी जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहते मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों में मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, नायब मुख्यमंत्री हमारे जब पंजाब में दौरे आने लगे, उनके लगातार रैलियां होने लगी, और जो पॉपुलैरिटी उनको मिली वो बस मान जी को सालों में भी नहीं मिली, बात हकीकत है। और ये कारण उनको कहीं ना कहीं एक फैक्ट आ गया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पिलर नेता ही भगवा लहरा दे, और किसी बात दिक्कत नहीं है, ना जनता दिक्कत है ना इनको जनता कोई खास मतलब है। आपको गर्व होता है भगवत मान जी, तो यही 30 साल की लड़की का मन हुआ है अंदर, उसके क्या किया इन्होंने भगवत ने। मैं तो मैं प्रियदर्शनी माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल आपकी आवाज बहुत क्लियर, थोड़ी रुक कर आ रही है, इसलिए बहुत क्लियरली दर्शक भी समझ नहीं पा रहे होंगे। सर आपकी तरफ से टेक्निकल एरर होगा, क्योंकि मुझे मैं वही कह रहा हूं कि एक बार टीम चाहे तो दोबारा आपको जोड़ ले ताकि और क्लियर बात हो पाए। और काफी हद तक आपकी बात मुझे समझ आई है, लेकिन और अच्छे से समझ आई, इसलिए जरूरी है एक बार मेरी टीम जरूर देख लेगी। मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं संजय जी का एक बार रुक कर लूं। संजय राय सर जुड़े हुए ने, सीनियर पत्रकार ने। संजय जी, ये आपको केवल खेल के इंतजाम या खेल नीति तक मामला समझ आता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कहानी कुछ आगे है इससे? देखिए, जिस ग्राउंड में ये जो मामला हुआ है जी, वो लगभग 25 साल या 20 साल पहले की मामला हुआ। ठीक है। वो जो ग्राउंड बनाया गया था बच्चों के खेलने के लिए, वहां का था, वो पोल लगभग 20 साल पहले लगा हुआ। ठीक है। जो चीज अभी निकल के बातचीत आई है, और उसमें यह है कि पिछले जितनी भी सरकारें रही उन्होंने उसकी देखरेख नहीं की, उसने क्या किया क्या नहीं किया। बस अब एक नहीं दो जान चली गई लगातार, और 2 जान की भरपाई तो अब नहीं हो पाएगी। ठीक है। और अब सियासत शुरू हो चुकी है कि कौन आया कौन गया, किस तरीके से किसने वहां पर इसको आगे बढ़ाया, और अब सियासत की बातचीत आ गई है कि क्यों आया। एक दूसरे की उसमें क्षेत्र में घुस करके घुसपैठ करना, जिसे मैं घुसपैठ ही कहूंगा, कि कह करके। और होता क्या है कि हर पार्टी के लोग, ठीक है, जिस समय से वो बच्चे की डेथ हुई है, दोनों बच्चों की डेथ हुई है, कोई एक पार्टी का नहीं, हर दल के लोग उसके घर गए या उन्होंने बयान दिए। घर नहीं गए तो बयान दिए हैं। हुड्डा का भी बयान आया है, चौटाला का भी बयान आया है, और उसके अलावा जेजेपी पार्टी के लीडर्स का भी बयान आया है। बीजेपी पार्टी के लीडर्स भी गए हैं, खेल मंत्री भी उनके घर गए हैं। हाँ, बस लोगों को आज मौका मिल गया कि भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री वहां उनके घर गया, और जाने के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के क्यों नहीं उसके घर पहुंचे। बात यहां पर पहुंची है, और बात यहां उलझ रही है कि भगवंत मान ने मौके पे देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री का हरियाणा रोहतक जाना और प्लेयर के परिवार से मुलाकात करना, आपको लगता है कि ये एक सियासी चाल है? सियासत देखिए हर जगह है। होता क्या है कि हर तरफ का, कौन सी बिरादरी का कौन है, कौन सी चीज का क्या है, उस चीज को उन लोगों ने टारगेट करके करने का काम किया है। ठीक है। बच्चे दोनों जो थे वो जाट बिरादरी के हैं या किस तरीके से हैं, उन सब चीजों को लेकर के उन लोगों ने बात को शुरू किया, और करने के बाद आज कहां तक बात पहुंच सकी है। आप ये भी तो देखिए कि आज जो है मुद्दा सुबह से ही उछला हुआ है कि कल भगवंत मान उनके घर क्यों गए, और आज सियासत पे सियासत, बयान पे बयान, बयान पे बयान। अभी शाम का बयान इस पे चर्चा में नहीं आया,
कि खेल मंत्री ने सारे डीएसओस को बुला करके पंचकुला के अंदर और सख्ती से ताकीद कर दी है और जांच के लिए, मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए उन्होंने आदेश कर दिए थे मुख्यमंत्री ने सुबह। ठीक है। और इस समय शाम को अभी मैं बताऊं कि आपको 6 बजे के लगभग वो मीटिंग खत्म हुई है और पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उनका सारे डीएसओस के, प्रदेश के पूरे डीएसओस को बुलाया गया, उनको सही किया गया। हर गांव में, हर पंचायत के अंदर जहां भी खेल स्टेडियम बने थे या बनने की है, क्योंकि खेल का हम लोग का ये एक नर्सरी है। पंजाब और हरियाणा के अंदर पूरे हम लोग को देश के खिलाड़ी दिए हैं, हमने देश के अंदर एक से एक ब्रिलियंट दिए हैं। बात उलझी हुई है कि जो राष्ट्रीय टीम में इस बच्चे को जाना था पूना खेलने के लिए और राष्ट्रीय टीम में इसका सिलेक्शन था, और अचानक ये देखिए पोल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और इस पोल का गिरना और उसके चेस्ट पर लगना, इसी तरीके से जो दूसरा वाला पोल है, वो जो दूसरे बच्चे की डेथ हुई है वो भी इसी तरीके से गला हुआ पोल। आप बास्केटबॉल का ही नहीं है, मुद्दा बास्केटबॉल का ही नहीं है, फुटबॉल के मैदान का भी है, हॉकी के मैदान का भी है। देखिए सर, मेरे को तो ये भी लग रहा है कि मुद्दा केवल खेल का नहीं है, मुद्दा तो सियासी खेल का भी है ना, कि किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा चले गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरीके से पंजाब आ रहे हैं। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकती हैं, होपफुली आपकी आवाज अब अच्छी और क्लियर आएगी। जी जी, अब आवाज क्लियर आ रही है गौरव जी आपको? बेहतर है, अब अच्छी आवाज आ रही है। जी जी जी। देखिए, सियासत कौन कर रहा है गौरव जी? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री का यहाँ पे रोहतक का दौरा क्या सियासी दौरा नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, ठीक है, क्या उन्होंने जब SYL पे उनसे हरियाणा में पूछा जाए तो कुछ और बोलते हैं, उधर जाया जाए तो और बोलते हैं। तो देखिए, इनके दोहरे मापदंड है। और मैं जो बोल रही थी ना, जिस बारे में मैं बात कर रही थी कि ये एक ऐसी पार्टी है जो धरने और नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। आम आदमी पार्टी का पूरा इतिहास देख लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। आतिशी जी जब मुख्यमंत्री थी तब वो धरने में बैठ जाती थी। अरे आप देश के, आप नई दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप धरने में बैठेंगी तो काम कौन करेगा फिर? तो ये इन्होंने शुरुआत यही से हो गई थी गौरव जी, कि जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नायाब मुख्यमंत्री, हमारे एक मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी के ऊपर जब इन्होंने घटिया इल्जाम लगाया था कि हरियाणा जो है वो जहर का पानी दिल्ली वासियों को भेज रहा है, उसी समय ये तय हो गया था कि दिल्ली से इनका सफाया होने वाला है, दिल्ली से इनकी सरकार जाने वाली है। और ये आगाज हो गया था क्योंकि ये घटिया राजनीति पे आ गए थे, मैं आपको बताऊं। और ये नेगेटिव राजनीति और घटिया राजनीति, सर 2 मिनट में सर मैं कंप्लीट कर दूंगी, 2 मिनट में सर मुझे दीजिए। और यही आगाज आज इन्होंने शुरुआत कर दी है। इनसे अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। बास्केटबॉल के ग्राउंड में जाके बच्चे को गोलियां मार दी गई थी पंजाब में। ड्रग्स किस तरीके से फैल रहा है ये सबको मालूम है। गैंग वॉर्स इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग अब अपने घरों से छोड़ के विदेशों में रहना शुरू हो गए हैं। जॉब सिक्योरिटी इन्होंने क्या की है, क्या कर रहे हैं ये लोग, उस पे कोई बातचीत करने के लिए भगवत मान जी तैयार नहीं है। जब इस देश में जब पाकिस्तान ने अटैक हमारे पर किया था, जहां पे सारे की सारी पार्टियां एकत्रित थी, एक साथ थी, तो देशद्रोही की तरह आम आदमी पार्टी ने और इनकी सरकार ने अपनी तरफ से बोल रहे कि जी हमें ड्रोन बनाने का फॉर्मूला दो, हम ड्रोन चलाएंगे। अरे आप आइए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम करना चाह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि थोड़ा सा फोकस देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। बहुत आगे निकल जाएंगे तो फिर मैं हर चीज का जवाब नहीं ले पाऊंगा। संगेड़ा साहब जी। जी प्रियदर्शनी जी, चलो मैं इन पर निजी बात नहीं करना चाहता जी, ज्यादा सियासत में ग्रस्त हो गई हैं और केजरीवाल से बीजेपी इतना डरती है कि एकदम ये दिल्ली चले गए, उस बात पर इन्होंने बात करनी छोड़ दी, टाइम भी ज्यादा ले गए हैं, वापस पंजाब आकर फिर दूसरेबाजी शुरू कर दी। मैं फिर बास्केटबॉल पर ही आता हूँ। बास्केटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पंजाबी च बोलूंगा जी, क्योंकि पंजाबी च ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ केवल 2 पोल ही हैगे आ, एक दूसरे पासे एक दूसरे पासे है। और दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा स्टूडेंट लाइफ च, मैं इंटरवर्सिटी च भी खेडिया, साडी पीशनस भी आईयां आ। दुनिया भर ਵਿੱਚ इस तरह पोल कदी नहीं डिग्या। मुख मंत्री हरियाणा ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ
ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ नहीं बोलिया। जो पंजाब में ये हालात बता रहे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पंजाब में बहुत हद तक कंट्रोल किया है और 50 किलोमीटर बीएसएफ के पास है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। भगवंत मान साहब ने तो उत्थे एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 तक ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਆ, 10-15 ਪੇਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਵੈਰੀ ਯੰਗ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਡੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੰਭਾਲਣ मैं एक बार संजय जी का रुख करना। संजय राय साडे नाल जुड़े हुए हैं। संजय जी, इसको ये भी समझा जाए कि दोनों पार्टियां या दोनों बड़े चेहरे पंजाब और हरियाणा के, पंजाब के 2027 के इलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो डेफिनेटली करना ही करना है। अब क्या इसको भी दखलंदाजी समझा जाए कि पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा चले गए, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले बहुत सारे मेरे को उनके दौरे याद है कि जब वो पंजाब में आए, अलग अलग जगहों पर गए, कुछ घटनाएं हुई थी, उनके परिवारों से जाकर भी मुलाकात की। क्या ये दोनों की एक दूसरे के प्रदेश में दखलंदाजी के तौर पर देखा जाए इसको? थोड़ी सी देखिए, बीजेपी का क्लियर मैं स्पष्ट बोलूंगा कि बीजेपी इस वक्त पंजाब को अपने अंदर जो पंजाब का नेटवर्क है अपना वो दुरुस्त करने में लगी हुई है जी, वो क्लियर बात है। आपको मैं बता दूं कि अभी भगवंत मान जी का जो जाना है और मौका मिला है, उसको मैं जरा 2 दिन पहले में लेके जाता हूँ 25 तारीख वाले में जी, कि जो 25 तारीख का गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें जिस तरीके से भव्य तरीके से मनाया गया और जिस तरीके से मीडिया का कवरेज था और सब चीज थी, उससे थोड़ी सी परेशानी पंजाब के मुख्यमंत्री को भी थी कि हमारे को क्यों नहीं इतना हाईलाइटेड मिला और प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति जी ने हमें क्यों नहीं समझे, क्योंकि उनका भी इनविटेशन गया था। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आगे करके गए और यहाँ नहीं करके गए। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब के अमन अरोड़ा, उन्होंने की, कहा कि 15 मिनट दूर थे, क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री इस चीज को था। आप उस चीज से इसको जोड़ के देखिए, सियासत जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इसमें ओपन सियासत हुई है। इनको मौका मिला, खिलाड़ी की डेथ हुई, खिलाड़ी की चोट लगी, अब डेथ हो गई, उसमें तुरंत ये पहुंच करके पूरा का पूरा, आज देखिए पूरे सारा मीडिया के अंदर आज उसी की चर्चा है, उसी बच्चे की चर्चा है कि भगवंत मान उनके घर गए, उसके अलावा कोई चर्चा है वो सब चीजें भुला दी गई। बात वहां पर है। बात ये है कि पंजाब के अंदर हरियाणा या भारतीय जनता पार्टी क्यों स्ट्रांगली तरीके से उनके चीजों को लेकर के कर रही है, और यहाँ पर उस बच्चे का कोई नहीं देख रहा, उसके परिवार का कोई नहीं सोच रहा है। केवल चर्चा क्या चल रही है कि भगवंत मान यहाँ आ गए, क्यों आए, भगवंत मान को क्यों आना हुआ और किस तरीके से है, और उनको अपने यहाँ देखना चाहिए, उनको अपने। देखिए, दायरा सबका है। प्रधानमंत्री वहीं पर, अब मैं बोलने पर आऊं तो कहूं तो बात दूर तक जाएगी,
प्रधानमंत्री अयोध्या में थे, ठीक है, लखनऊ के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम था, सीधे अयोध्या से उड़े कुरुक्षेत्र आए जी, क्योंकि यहाँ उनका टाइमिंग यहाँ दी हुई थी। अब उस पर कोई सियासत करने की, योगी जी उस कार्यक्रम में पहुंचे और लखनऊ के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम में थे, लेकिन वहां प्रधानमंत्री नहीं गए। लोग करने को तो बहुत बातें आ जाएंगी और जितने मुंह उतनी बातें आएंगी। वो चीजें थोड़ी सी लोगों के अंदर ये देखना है कि पंजाब की सियासत, क्योंकि आगे चुनाव भी आना है, पंजाब भी आना है, इसके बाद बंगाल भी आना है, तो हर कोई बीजेपी अपना टारगेट सारा दे के चल रही, क्योंकि बिहार ये जीत चुके, तो आगे अब ये आएंगे इस चीज पर। तो इसको तो आपको लग रहा है कि जो भी पिछले दिनों में हुआ, चाहे वो कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, और ये सारा बीजेपी की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि 2027 पे जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, तो मतलब मेरे को तो ये भी लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री को कि आप भी आइए, आप भी इस तरीके से रिएक्ट कीजिए। अब वहीं पर देखिए कल शिवराज सिंह चौहान पंजाब में थे, उसको नहीं लिया। उन्होंने कैसे रोटी खाई, किसानों के बीच में बातचीत करी, वो चीज नहीं दिखाई गई इतनी ज्यादा। वो हाईलाइटेड क्यों नहीं हुई? वो भी तो हाईलाइटेड होनी चाहिए थी। नहीं देखिए, पंजाब के चैनल्स में तो वो हाईलाइटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान आए, उनकी तस्वीर खूब वायरल हो रही थी, वो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाते हुए वहां पर नजर आए। नहीं ठीक है, मैं आपके पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। मैं एक बार संगेड़ा साहब का दोबारा रुख कर लूं, होपफुली इस बीच प्रियदर्शनी जी दोबारा जुड़ जाएंगी। संगेड़ा साहब, बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਐਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ शिवराज चौहान साहब ने किसानों के साथ बैठकर खाना खाया, रोटी खाई, लेकिन पंजाब के हाथ से वो रोटी खोना चाहते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी ने तो एंटी फार्मर्स कानून बना के इस तरह का बनाता सीगा भी छोटे ते मध्य वर्गी किसानां ने लैंडलैस हो जाने सीगा, लैंडलैस वर्कर बन जाने सीगे। वो कानून वापस करवाए और हुण 1600 करोड़ तक दे मुआवजे का ऐलान किया, जबकि 10,000 करोड़ की मांग की थी, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अजे तक बहस करी जा रहे हैं और कोई ना कोई बीजेपी का नेता ਇੰਨੀ ਚੁੱਭਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆ ਗਏ, 12-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, 12-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ BBMB ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮਾਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ बात ठीक है संजय जी, संजय जी सियासत तो चलती रहती। ठीक है संजय जी। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ और सहमत हूँ कि भाई आप भी अपनी अपनी चीजों पर, किसानों के मुद्दे पे आपके जो सवाल हैं वो ठीक है,
लेकिन आज हमारी बात है किसान पर नहीं, खेल पर, खिलाड़ी पर, जिस खिलाड़ी की डेथ हो। अभी देखिए कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा कि एक खिलाड़ी, केवल महिला खिलाड़ी टीम की सदस्य थी हरियाणा से, उसको 1.5 करोड़ रुपए दिया गया। कुछ पंजाब से भी हमारे कैप्टन थे, वहां क्या दिया, जो जीत के आए या उस टीम के सदस्य जो भी रहेगा उसको आप लोग अवॉर्डेड करते हो, किसी को 1.5 करोड़ देते हैं, 2 करोड़ देते हैं, या जो चीज है। जीते हुए के साथ हर कोई है, लेकिन वो जीतता कैसा है, किस मुसीबत से जाके जीता है, किसी के घर में खाने को है कि नहीं है, किस तरीके से उस बच्चे के लिए जूते हैं कि नहीं है, उसके बाद खेलने के लिए बॉल है कि नहीं है, हर चीज की चीजें, समस्याएं होती है उस पेरेंट्स के पास कि वो कितना टाइम उसको दे पाता है। अब वो 1.5 करोड़ रुपए की बजाय उस बच्चे के लिए, उस नर्सरी को ठीक किया जाए, जो बच्चे ने वहां एडमिशन लिया उसको वजीफे दिए जाए, उसको वजीफे के साथ साथ उसको खर्चे दिए जाए, खुराकी दी जाए, बहुत सारी चीजें, चाहे पंजाब का हो, चाहे हमारे हम क्या नाम है, बच्चे गांव से निकल के आ रहे हैं, कोई शहरी बच्चा नहीं निकल के आता, शहरी बच्चा क्रिकेट की तरफ जाता है, ठीक है, ज्यादा क्रिकेट की नर्सरियों में जाता है। चलिए मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूं। संगੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਰਜਰ ਪੋਲ नहीं है? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं गौरव जी, मैं संजय राय जी की बात से सहमत हूँ। पंजाब में हम कर रहे हैं, भगवंत मान जी कर रहे हैं। हमने तो 5 करोड़ के करीब पहले ही खिलाड़ियों को दिया तैयारी करने के लिए, और जो आए हैं, जीत कर भी आए हैं, उनको भी करोड़, किसी को 1.5 करोड़ ऐसे हेल्प की है, जॉब्स भी दी है, ये सारा कुछ करते रहे हैं। पंजाब में इंटरवर्सिटी में भी जो ऊपर 4 टीम्स आती हैं यूनिवर्सिटीज की, 3 पंजाब की होती है, एक राजस्थान की या किसी और सूबे की होती रही है काफी देर। पंजाब में कोई ऐसी बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं है जैसे मैं संगੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 2012 ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਆਏ, 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 20 ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਗਿਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਅਜੇ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ प्रियदर्शनी जी दोबारा साडे नाल नहीं जुड़े, कुछ टेक्निकल फॉल्ट सी, मैं चर्चा नू समाप्त करांगा, पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी छोटा एक कमेंट थोड़ा जरूर। मैं थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास वो जो पोल गिरा है वो 25 साल पहले लगाया गया, ठीक है, और इसके बाद मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई? अब सरकार जागी है, हरियाणा सरकार ने तो क्लियर निर्देश दे दिए, सारी रिपोर्ट चाहिए हमारे को, और वो ला करके दो और क्लियर करके दो। और ये यही का नहीं है, हर स्टेट में ये समस्या है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में समस्या है, और हर स्टेट की सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने खिलाड़ियों को अगर बढ़ाना है और उनको आगे लाना है तो उनके लिए कुछ न कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, और उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। गांव में स्टेडियम बना दिए गए, जबकि चन्नी साहब ने भी कई जगह स्टेडियम बनाए हैं, और अमरिंदर साहब ने बनाए, अब हमारे भगवंत मान जी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो बनाने के लिए है संसाधन तो आपने कर दिए, लेकिन उसको मेंटेन करना भारी है, और उसके लिए जिम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, जो रिपोर्ट नहीं देते स्टेट को, स्टेट वाले दबा देते हैं फाइलों। मैं फिर घूम फिर के मैं स्पोर्ट्स से ज्यादा मुझे लग रहा है कि गौरव जी 3000 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं भगवंत मान जी द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा। देखो मैं तो यही कह रहे हैं कि स्टेडियम्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।